सिस्टम का जो हाल है, जेब में पैसा नहीं है तो एजुकेशन मिल पाएगा ये सोचना भी मुश्किल है। और पैसा देकर भी जो एजुकेशन मिल रहा है वो भी सिर्फ हम लोग कुछ फैक्ट्स सीख रहे हैं, साइंस के कुछ लॉज हम लोग रट ले रहे हैं, हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स हम लोग जान ले रहे हैं, लेकिन इंसान बनाने का काम अभी और ये एजुकेशन सिस्टम नहीं कर पा रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं रोबोट्स बन के आज निकल रहे हैं, और ये इतना सब फैक्ट्स याद कर लेने के बावजूद भी सिर्फ डिग्रीज होल्ड कर रहे हैं क्योंकि जॉब्स कहीं नहीं है, गवर्नमेंट और जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। महिलाओं बच्चियों की सेफ्टी का जो एक इशू है, दैट्स अ वेरी बर्निंग इशू। पूरा देश भर में अभी जो आर्टिकल मूवमेंट हुआ ये हम लोगों के सामने बहुत रिसेंट एक एग्जाम्पल है। तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम का जो हाल है, इंसान बनाने का जो काम है वो तो आज हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं कर पा रहा है, जॉब्स देने का काम भी ये सिस्टम नहीं कर पा रहा है। तो यही सब इश्यूज को लेकर समाज में एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है, कल्चर पर जिस तरीके से हमला हो रहा है, ये सभी इश्यूज को लेकर AIDSO की तरफ से 10th ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 27 से 29 नवंबर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ये कॉन्फ्रेंस होगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए कॉन्फ्रेंस हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ AIDSO के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट प्रियंका शेखर हैं, और ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी सौरभ घोष हैं। खोलिए इसको। इस कॉन्फ्रेंस को ध्यान में रखते हुए एक रिसेप्शन कमेटी बनाई गई है। हमारे रिसेप्शन कमेटी के प्रेसिडेंट और दिल्ली यूनिवर्सिटी में DSc में प्रोफेसर देवेंद्र माइती हैं, और AIDSO के ऑल इंडिया सेक्रेटेरिएट मेंबर और रिसेप्शन कमेटी के सेक्रेटरी हम सभी मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे। सभी लोग अपनी बात रखेंगे इसमें। कॉन्फ्रेंस के जो हमारे डिमांड्स हैं, हम लोग इस उद्देश्य को लेकर ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसको रखने के लिए मैं AIDSO के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट प्रियंका शेखर जी को अपील करूँगी कि वो इसको अपनी बात रखें। So friends, welcome to all of you. Okay. So dear friends, a hearty welcome to all of you. Already our AIDSO State Secretary Shreya Singh has told you what are the issues. You all know our education system, it is in a deep crisis today. Particularly the National Education Policy, NEP 2020, which is going to be a very, very disastrous. It's very unfortunate to see that. I don't know in any country such a policy has been formulated, because a national education policy recommends closure of government schools. It is alarming, and how this can happen, and particularly all of you know, we saw this corona pandemic. During that time, what was the crisis in our society? Millions have lost their jobs, thousands lost their lives, millions lost their livelihood. This has been the condition. And what happened in the education sector? Fact is before us, almost in every state all over the country, even middle class people brought their children to government schools. This is the condition of India. But now we are seeing the national education policy is recommending closure of government schools. There can be no less a crime than this. Already, just last year, 1 year before, 1 lakh upper primary schools have been closed down in the entire country. 1 lakh. And now, in Madhya Pradesh, in Orissa, in Karnataka, all over the country, the government is planning to close down these schools. The name what they are giving is merger of school. It is nothing but closure of school. 4, 5 schools will be merged into one, meaning 4 schools will be closed. This is very alarming.
This one side we are seeing. And another side, the commercialization of education. We expected the national education policy will criticize the government, ensure that the education will not be commercialized. But you see the policy says profiteering in education is no wrong. There can be profiteering. In education there can be profit. Very disastrous. The law of this land and all the great Renaissance personalities, right from Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chandra Vidyasagar, Jyotiba Phule, all our great freedom fighters, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, their dream was all will get education. Education should not be commercialized. But betraying all the dreams of all these great personalities, that too when the country is observing the 75th year of Indian independence, we are seeing they are trying to commercialize the whole education. So against these things, particularly against this national education policy and various policies of the government, from All India Democratic Student Organization, from the last more than 3-4 years, particularly after this policy came, we are in a continuous movement. All over the country, I think most of you know, we collected 1 crore signatures. Physically we collected 1 crore signatures. And nearly 2 million volunteers were enrolled in this effort. Students went, they collected the signatures, demanding the government to save public education. That is our demand, to save public education. With this demand, we took it up, and later, in several states, there were several seminars, conventions, protests. It was culminated in zonal conventions. In the entire country, we organized 5 zonal conventions. It started from northeast part of India. Then it culminated in the South Indian Convention. Then after that, as a continuation of this movement, we are going for this 10th All India Students Conference, wherein thousands of delegates from all over the country, they are coming to Delhi. All these delegates, they are all the leaders of the student community. Because if you want to organize this conference means no less than 3 million students have to come. They are the activists who work in this campaign. All the activists of AIDSO. To bring 3 million to Delhi is very difficult, you all know. So only the student leaders, they are the delegates from all over the country. They will be coming to Delhi in the Talkotara Stadium, it will be there. The main slogan of this conference is to save public education. Next is reject NEP 2020. And another demand is, you all know, now all over the country, the scholarship which was given to the students, to SC, ST and the OBC students, even that scholarship is being stopped. In several states of India, the situation is thousands of crores of rupees, that amount is pending. Central government has also stopped many scholarship programs, even the state government stopped it. And we all know that the situation now is on the question of commercializing the education, on the question of closure of school. Almost all state governments, whichever party may be ruling the state, we are seeing the various state governments, even they are implementing this most out and out anti-education, anti-people policy. This is what is happening. So friends, the one side we see the situation is very dark, because all the governments, central government or various state governments, they want to do business in education. They want to commercialize education. This is one side. And another very bright side of it is the student movement which we are trying to develop from AIDSO. Very good response we are getting. Already I told you. So millions and millions of students are joining us. All over the country the student movement is growing on. So our request to all our media friends is, you please give a very good coverage for this conference. You please do support us. So with this appeal,
I share my few thoughts with you. Maybe if any questions are there, we can talk later. Thank you, friends. Now I would invite Prashant Kumar, already introduced. He is the All India Secretariat member of AIDSO and Secretary of Reception Committee. He would speak about the details of conference. जैसा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट वीएन राजशेखर जी ने रखा ही है, ये सम्मेलन महज सांगठनिक सम्मेलन नहीं। देश के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और पिछले कुछ सालों में शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं वो हर सेक्शन में, हायर एजुकेशन, रिसर्च, प्राइमरी एजुकेशन, हर सेक्शन में वो बदलाव बहुत ही मौलिक किस्म के हैं। लेकिन ये बदलाव, ये नहीं कह सकता कि ये बदलाव केवल इन 10 सालों का ही नतीजा है। आज वर्तमान जो सरकार, केंद्र सरकार, जिस तरीके से ये पूरे देश में जो विध्वंस की जो तस्वीर बना रही है, इसका जो खाका, इसका जो कैनवास ये दिया गया है पहले की केंद्र सरकार और जो भी सरकार जो आए हैं अलग अलग समय में, उन लोगों ने ऐसा कैनवस प्रोवाइड किया है जिसके बेस पर की वर्तमान केंद्र सरकार शिक्षा के विध्वंस का चैंपियन बनी हुई है। सरकार चाहे जितना भी तर्क प्रस्तुत करे, स्कूल के क्लोजर मर्जर को लेकर, शिक्षा के निजीकरण को लेकर, शिक्षा के व्यापारीकरण को लेकर, एनईपी में जिस ढंग से कंफ्यूज्ड तरीके से चीजों को रखने की कोशिश की गई है, लेकिन जहां कहीं भी एआईडीएसओ के साथी गांव के छात्रों से शुरू करके जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं देश के, वहां पर जा रहे हैं, नए नए जगहों पे जा रहे हैं और वहां जाकर के जब सही तरीके से जब इसके पूरे डिजाइन को जब पेश कर रहे हैं, तो जो रिस्पांस मिल रहा है वो रिस्पांस ट्रेमेंडस है। साथ ही एक बार जाने के बाद ही अपने आप वो जुड़ रहे हैं, वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम आपके सम्मेलन में कैसे आएं, आप हमें ये बताइए। और ये एक जगह की बात नहीं, ये पूरे देश में इस तरीके का रिस्पांस इस आंदोलन को मिल रहा है। तो ये आंदोलन, ये कार्यक्रम, ये केवल सांगठनिक कार्यक्रम नहीं, हालांकि हर एक 4 साल 5 साल में इस तरीके का सम्मेलन एआईडीएसओ आयोजित कर रहा है, लेकिन ये केवल रूटीन सम्मेलन नहीं है। ये सम्मेलन संगठन और देश में छात्र आंदोलन एक नए चरण में जाने के लिए तैयार है, ये इसका भी आगाज है। इस सम्मेलन के महत्व को और इस सम्मेलन को जिस ढंग से सपोर्ट मिला है स्टूडेंट्स कम्युनिटी, इंटेलेक्चुअल्स के अंदर और लगभग हर क्षेत्र से आने वाले लोगों के तरफ से, इसी का नतीजा है कि हम लोगों ने जब इस सम्मेलन के लिए एक रिसेप्शन कमिटी बनाने की हमने कोशिश की, बहुत सारे नॉन इंटेलेक्चुअल्स इसमें बहुत ही खुशी से इसमें शामिल हुए। प्रोफेसर दिवेंदु मैती दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं, रिसेप्शन कमिटी के प्रेसिडेंट। डॉक्टर गौहर रजा, प्रोफेसर नंदिता नारायण, प्रोफेसर सच्चिदानंद सिन्हा, प्रोफेसर अरुण कुमार, एडवोकेट विजय सिंह, ऐसे ही किसानों के बीच से, किसानों के नेता, कई सारे ऐसे लोग, प्रोफेसर सुश्री यहां बैठी हैं जामिया से, ऋतु कौशिक जी हैं, वुमेन एक्टिविस्ट, तमाम तरीके के ऐसे सेक्शन के लोग जो कि अपनी अपनी जगहों पे एक स्थान रखते हैं सामाजिक कामों में, उन लोगों ने बहुत ही खुशी से इस रिसेप्शन कमेटी में रहने की
हमें हमारे अपील को एक्सेप्ट किया। इसके साथ कॉन्फ्रेंस में पहला दिन 27 तारीख को प्रोफेसर इरफान हबीब वो इसको इनॉग्रेट करेंगे और शाम का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें कि डॉक्टर गौहर रजा उसको इनॉग्रेट करेंगे। इसके साथ ही वहां पे हम लोगों ने कुछ एग्जीबिशंस का हम लोग वहां पे लगाएंगे, अलग अलग तरीके के एग्जीबिशंस होंगे वहां पे, जो देश भर में जो आंदोलन हुए हैं, जो चल रहे हैं, उसको लेकर के एक फोटो एग्जीबिशन होगा जिसको प्रोफेसर सच्चिदानंद सिन्हा इनॉग्रेट करेंगे। आर्ट एग्जीबिशन होगा, आर्ट और पेंटिंग का एग्जीबिशन, इसको प्रोफेसर नंदिता नारायण इनॉग्रेट करेंगे। कोटेशंस का एग्जीबिशन होगा, जो हमारे देश के जो महान मनीषी, स्वतंत्रता सेनानी, नवजागरण के जो महापुरुष हुए हैं, उन लोगों के वक्तव्यों को हम लोग वहां पे एग्जीबिशन लगाएंगे, जिसको प्रोफेसर अरुण कुमार उसको इनॉग्रेट करेंगे। इसी तरह से एक एकेडमिक सेशन होने जा रहा है 28 तारीख को दोपहर में, जिसमें कि प्रोफेसर वांडेल पासा जो रिटायर्ड एचओडी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, सेंट एडमंड कॉलेज शिलोंग मेघालय, वो इसमें वक्तव्य रखेंगे। प्रोफेसर राम पुनियानी, रिटायर्ड प्रोफेसर आईटी मुंबई, प्रोफेसर जमीरुद्दीन शाह, फॉर्मर वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर एल जवाहर नेसन, फॉर्मर वाइस चांसलर जेएसएस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी मैसूर, प्रोफेसर नवनीत शर्मा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, डॉक्टर तरुण मंडल, फॉर्मर एमपी एंड लीडर्स ऑफ पीपुल्स हेल्थ मूवमेंट, ये एकेडमिक सेशन में रहेंगे, जो शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर, अलग अलग एस्पेक्ट्स पर ये लोग अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही चीफ गेस्ट रहेंगे इस सम्मेलन के प्रोफेसर चमन लाल, नाम से आप सब लोग वाकिफ हैं। तो इन सभी साथियों का, इन सभी जो देश के जाने माने लोग हैं, इन लोगों का इसमें काफी समर्थन और सपोर्ट है। इसके साथ ही इसमें प्रोफेसर रोमिला थापर का उन्होंने अपना मैसेज भी भेजा है, वो भी रीड आउट किया जाएगा। और इसमें बाहर के देशों से भी बिरादराना जो छात्र संगठन हैं वो लोग भी आएंगे, नेपाल से, श्रीलंका से, इन जगहों से आएंगे और उनका भी एक सेशन, इंटरनेशनल लीडर्स के साथ भी एक सेशन 28 तारीख को किया जाएगा। इसके साथ ही हमारा हमेशा से कोशिश रहा है कि देश की परिस्थिति में जो अभी मौजूदा हालात हैं, इसमें एक संयुक्त छात्र आंदोलन ये मजबूत होना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है। इसलिए हम लोगों ने समय समय पर कोशिश हम लोगों ने किया है और इसमें एक सेशन भारत के अंदर जो लेफ्ट और डेमोक्रेटिक जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम लोगों ने उन सभी को भी इनवाइट किया है कि वो लोग आएंगे। और ये सेशन हम लोग 27 तारीख को हम लोग दोपहर में रख रहे हैं। इस तरह से इस पूरे सेशन को कंडक्ट किया जाएगा 27, 28, 29 अक्टूबर को। तो इन सभी चीजों को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर इस सम्मेलन को किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि यह सम्मेलन आने वाले समय में जो अपनी रूपरेखा तैयार करेगा, आने वाले समय में जो रणनीति तैयार करेगा, उससे देश में छात्र आंदोलन, शिक्षा आंदोलन और इस देश में हम जो मांग लेकर चल रहे हैं कि इस देश में सही मायने में एक वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी शिक्षा व्यवस्था लागू हो, जो मांग हमारे देश के नवजागरण के मनीषी विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी, अनकॉम्प्रोमाइजिंग ट्रेंड के भगत सिंह, नेताजी, इन तमाम तरीके के लोगों ने जो एक सपना देखा था आजादी के वक्त कि हमारे देश में सही मायने में शिक्षा सबको मिले, वैज्ञानिक हो और धर्मनिरपेक्ष हो,
उसी डिमांड को लेकर एआईडीएसओ संघर्षरत है और ये सम्मेलन इस डिमांड को आगे बढ़ाते हुए इस आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में एक मजबूत मील का पत्थर साबित होगा। या इसीलिए आप सभी प्रेस के साथियों से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सम्मेलन को, जो 3 दिन का सम्मेलन है, इसको भी आप लोग कवर करें और इस सम्मेलन के मैसेज को आम जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद। कितने वाइस चांसलर है? वाइस चांसलर Former vice chancellors are there हाँ for there. It is 10th conference, no? 10th conference. What was outcome of previous one, 9th conference? Oh, 9th conference was held in Hyderabad. So that time also many issues actually after our conference in this moment many things we could achieve. Say for example the 4-year degree program. That time. Yeah, it was it is a part of NEP In which time 9th was held? 2019. So this 4-year degree program has been withdrawn in Karnataka and in other states. So that way, due to this moment only. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्या है बात करेंगे? Is there any talk by the professor of Yes, sir. That academic session. academics? Yeah, there That will be. is on 20. One of the That's 28. on 28. मॉर्निंग फर्स्ट तो बॉडी जैसे आपका AIDOs हो, एनईपी को सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हाउ कुड आई नो? We are opposed to it. I our believe slogan that- our main slogan is resist NEP and it is we are opposing NEP, so we are using this slogan. बट सर अब तो वहाँ अब तो इम्प्लीमेंट हो चुका ऑलरेडी, अब इसको कैसे विड्रॉ कर, वो बड़ा नहीं लग रहा वो बीच में हम लोग रहे हैं, नहीं हो तो चुका ही है। बहुत सारी चीजें हो रही है, कहा विड्रॉ करने का समय खत्म हो गया। नहीं विथड्रॉ करने का समय तो खत्म नहीं हुआ। ऐसे हम लोग अगर आंदोलन की इतिहास अगर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे चीजें जो इम्प्लीमेंट हो चुका था लेकिन वो आंदोलन करके उसको हम लोग विद्रोह भी कर, हाँ ऐसे जैसे कर्नाटक की जो एक्सपीरियंस है 4-year डिग्री कोर्स, वो तो इम्प्लीमेंट हो चुका था पर मूवमेंट करके ही हम लोग रोक दिया। आप उड़ीसा में देखिए कि स्कूल क्लोजर मर्जर का ये जो पॉलिसी, वो भी हम लोग पब्लिक कमेटी खड़ा करके लड़ाई करके उसको रोक दिया। उड़ीसा में रुक गया। हाँ एक्चुअली ये तो डेमोक्रेटिक एक कंट्री में मूवमेंट तो इसी तरीके से ही होता है, जब सरकार डेमोक्रेटिक पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं। बात है कि एजुकेशन की मुद्दे को लेकर जिस तरीके से बात होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं, जिस तरीके से इसको लाना चाहिए था उस तरीके से लाया नहीं गया। तो अभी तो कम से कम पब्लिक को ये मौका मिले कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे थ्रू मूवमेंट। जब पार्लियामेंट में पब्लिक की जो ओपिनियन वो नहीं पहुंचती है तो हम लोगों को सड़क को ही चुनना पड़ेगा, वही हम लोग चुन रहे हैं। तो इस मूवमेंट में एनएसयूआई या लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशन को साथ नहीं है? नहीं वो तो प्रशांत जी अभी रखे हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि एक यूनाइटेड मूवमेंट खड़ा करने के लिए एनएसयूआई के जो सपोर्टर्स है, जो स्टूडेंट्स है, उन लोगों से भी अपील है वो आ सकते हैं, लेकिन एज ए ऑर्गेनाइजेशन एनएसयूआई के साथ ये आंदोलन खड़ा करना मुश्किल है क्योंकि ये जो एनईपी 2020 इसके अगर प्रीफेस आप पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा वो बता रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो काम कर नहीं पाया हमें वही करना है। और 1986 में आप सभी को पता है उस समय राजीव गांधी थे सत्ता में और एनएसयूआई इसको खुल के सपोर्ट किया। तो इसलिए एनएसयूआई को आइडियोलॉजिकली इस मूवमेंट में आना उन लोगों के लिए दिक्कत है। हम लोग तो अपील कर सकते हैं लेकिन एनईपी 2020 के खिलाफ अगर आवाज उठाना है तो एक ही साथ एनईपी 1986 के खिलाफ भी आवाज उठाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो उतना पावरफुल मूवमेंट तो नहीं हुआ ना जो एनईपी को कैंसिल, क्योंकि कोई इसको सपोर्ट नहीं किया, इतना पता। एबीवीपी भी वो उसने सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन खोल के नहीं बता। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका है सर, विश्वविद्यालय में भी लोग कवर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें नहीं है अभी जो उस हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं। एबीवीपी भी खोल के नहीं बता रहे, लेकिन वही है क्वेश्चन ये है कि जो आपने इस टॉपिक्स को रख के ठीक है आएगी, लेकिन क्या है उस चीज में, मतलब वी आर
you are, I mean, ये जो NEP का ये जो मेन इशू जो है उसको डिस्कस करके छोड़ देगा ना, उसके ऊपर कोई ऐसा कोई एक्शन लेने की। एक्शन तो हम लोग जरूर लेंगे। उन्होंने जो पूछा था कि हमारा 9th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या है, 9th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस से ही हम लोग ये एंटी NEP मूवमेंट को लॉन्च किया था एक्चुअली। उस हिसाब से अगर देखा जाएगा, ये जो कैंपेन अभी जो माहौल बन रहा है NEP के खिलाफ जो बातें आ रही हैं, तो ये एक मूवमेंट का ही असर है। ये आप जो बोल रहे हैं ये सही है। जिस टाइप की रेजिस्ट मूवमेंट खड़ा करना चाहिए अभी तक हम लोग कर नहीं पाए, लेकिन ये तो सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो मानते हैं कि ये आंदोलन को खड़ा करना है, हम लोग सभी से अपील करते हैं आप आइए, और आंदोलन कोई और खड़ा करेंगे और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक रेजिस्ट मूवमेंट खड़ा कर दें, ऐसा तो डेमोक्रेसी में नहीं होता है। जो मानते हैं कि आंदोलन होना चाहिए, हम सभी को अपील करते हैं आइए। मानते जैसे आपने रिसेप्शन कमेटी बनाई, उसे कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए थी, सबको लेकर साथ चलिए। करेक्ट, जब तक वो ये मूवमेंट जो आप मूवमेंट सोच रहे हैं वो मूवमेंट में सबके साथ जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका मूवमेंट में ABVP क्यों नहीं आ रहा है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कि ABVP को आना चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल तो आप लोगों को ABVP को करना चाहिए, उनसे। उनके विरोधी हाँ लोग हैं, हाँ हाँ। जैसे- लेकिन हमारा एक एक्सपीरियंस है, आपसे हम लोग शेयर करना चाहते हैं कि हमारे 8 साथी अभी जेल में है गुना। वहां इस कॉन्फ्रेंस को लेकर कैंपेन चल रहा था, NEP के खिलाफ ये जो कॉन्फ्रेंस हम लोग करने जा रहे हैं। और खास करके आप जानते हैं कि MP में 94,000 स्कूल अभी सरकार ने अनाउंस किए हैं कि वो बंद करना है। तो इसके खिलाफ ये कैंपेन चलते हुए हमारे AIDSO के साथी के ऊपर वो लोग हमला किए और फिर फर्जी केस डाल के, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस डाल के हमारे AIDSO के 8 साथी अभी गुना जेल में है। तो ये ABVP NEP के खिलाफ कैसे है हमें तो पता नहीं है। हमें तो लगता है वो खुल के मदद कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि NEP लागू हो। क्योंकि उसकी खोपड़ी में जितनी घुसाना है बीजेपी घुसा दी है। तो उन लोगों की बात है, हम लोग तो बोल नहीं पाएंगे। थैंक यू। और एज ए पत्रकार तो आप आज आए हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे एज ए पर्सन, एक आम नागरिक के नाते इस कॉन्फ्रेंस में आप उपस्थित होइए। हर सेशन का आउटकम मीडिया में रीच, हाँ, वो मिलता रहेगा, वो मिलता रहेगा। हर दिन आपने क्या प्रेस ब्रीफिंग करके होनी चाहिए, कोई जाए नहीं दिया, बट आपको रिलीज करनी चाहिए। जरूर, आपके पास नंबर है, सबके पास, राहुल के पास जरूर। जी, हाँ, जी, राहुल जी, जी तो है। वो अपना कर सकते हैं। ठीक ठीक है। ठीक है। चाय पीजिए। अब बाहर कुछ चाय और स्नैक्स का